Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to study about the spherical mirrors. तो हम लोगों ने अभी तक प्लेन मिरर को स्टडी कर लिया, उससे इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर लिया, हमने लाइट्स का बेसिक्स भी पढ़ लिया है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स. तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, क्या वो बॉल के जैसे होते हैं? वाई दे आर लाइक कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, राइट? तो वो क्यों ऐसा बोला जाता है? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. We will be learning how to identify two different types of spherical mirrors और रूल्स किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उसके रूल्स स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सबको स्टडी करेंगे. सो टुडे लेक्चर्स विल बी अ फन लेक्चर. वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रियल लाइफ थिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन डेफिनेटली मास्टर द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स. And this topic is also important from the point of view that is from the school examinations and the Olympiads basically. So we do prepare for the NTSC, NSCJS, PRMO along with your school examination, right? And obviously we covered the 6th, 7th, 8th Olympiads also. So let's get started, alright? If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. All you need to do is to write the code TTB010 in the search box of the Telegram app. If you do that, तो फिर वहाँ पर सर्च बॉक्स में जैसे ही आप लिखेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स में जो लिस्ट है वो अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन द चैनल फॉर द क्लास 10, alright, and you will be getting all the things necessary provided to you also along with the notification of the chapters and the lectures upcoming and the previous one also, right? You will be getting that. Now see, this is the team which is going to help you a lot because this team as a whole we are providing you the content or you can say the quality lectures so that you can study from these lectures and prepare for the competitions from your home, from your comfort zone as you can say, right? But with a little bit of hard work because hard work is necessary. Either you want to do that from your home, either you want to do somewhere else, but you need to do the hard work, right? So basically all you need to do, watch these lectures, alright, practice the questions, do the weekly quizzes and then done, alright. क्या होता है बेसिकली जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको मेन थिंग होता है कि आप उस टॉपिक को समझो, उस टॉपिक को मास्टर करो बाय डूइंग द प्रॉब्लम्स. अगर आप ये कर लेते हो यू विल बी डन, राइट? तो हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, ठीक है? तो अगर आप इन लेक्चर्स को देखकर वीकली क्विजेस को अटैम्प्ट करते हैं, मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन आई एम श्योर दैट यू कैन डेफिनेटली क्रैक द कॉम्पिटिशन. either it is the NTSC or the NSCJS, right? Along with the PRMO also. So basically you can do that. So and also these lectures are free for everyone. So basically you can share these lectures to your friends, your families, your relatives so that they can also study from these lectures and definitely crack their goals. That would be so important thing because that would be a step by sharing these lectures so that these free lectures get to the everyone and they study from these lectures. They will be benefit by these lectures. This was so important, right? And according to that we have prepared the packages. See, lectures and the bi-weekly quizzes are free for everyone, but the other things, that is you can see the whole structure of the study, you can definitely get that using the you can say the packages here. So आपको क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पे जाना होगा हमारी, दैट इज www.talkingtextbooks.in. अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ पैकेजेस. द वन इज द फुल पैकेज, द अदर वन इज द टेस्ट सीरीज. फुल पैकेज के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, जो कि फ्री हैं सबके लिए, वो मिल रहे हैं, बाई वीकली क्विजेस मिल रही हैं. बट द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, अ वेरी मच फोकस स्टडी मटेरियल जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि उस टॉपिक से कंपटीशन में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, यू विल बी गेटिंग दैट. ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर. आप लोग को होमवर्क करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी एंड देन यू विल बी submitting the homework to us, right? That would be an important step for you to do so, right? And the next thing would be like you will be getting as you can say the periodic test papers. Periodic test papers because ये जो test papers होते हैं these can give you the idea of the final examination, like how questions will be appearing in that examination. You can say it would be act like as in rehearsal. Yeah, like you will be getting familiar with the pattern you are going to face in the final examination and that's how you can get rid of your fear of the examination, right? So you should definitely try them out.
Alright, and if you are not interested in the whole package, you can definitely get the test series. So basically you will be getting the periodic test papers, recorded and live classes, and bi-weekly quizzes. You will be getting that, and that will be so cool. So if you are interested in buying them, you can get my code CWELL-LIVE, and if you write this code in the you can say, if you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. So use my code, get that 30% discount, it will be cool. And if you are like worried or have some doubts about these packages, how they are going to help you and why you should even buy them and consider them, then you can call us on the number 919549041111. So make sure you do not have any doubt, and if you are really much, you can say, in doubt or confused, you can definitely call us, and that would be a good step around these, right? चलो अभी हम जो है प्रॉमिस कर लेते हैं. सो प्रॉमिस योर सेल्फ, you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes along with the revision, daily revision, right? देखो रिविजन करना बहुत ज़रूरी है. दिस इज द 10th क्लास, यू आर गोइंग टू फाइट द NTSC. डेफिनेटली आपके दिमाग में लोड बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज आपको 9th का भी रिवाइज करना है, 10th भी स्टडी करना है, एंड देन 10th का जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन देना है वो भी स्टडी करना है. तो दैट विल बी सो मच बर्डन ऑन योर हेड, राइट? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका बर्डन उतर सकता है, वो है रिवीजन अलॉन्ग विद द डेली स्टडी. सो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास रिवीजन का बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि आप इतना सब कुछ स्टडी कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू डू रिवीजन फॉर जस्ट 15 मिनट्स अ डे. स्टार्ट करो 15 मिनट्स अ डे से, ठीक है? एंड हर एक मंथ में इंक्रीज दैट 15 मिनट्स. दैट इज यू कैन से वुड बी सो मच बेनिफिशियल बिकॉज आप पुरानी चीज़ों को रिमेंबर कर पाओगे, तो लिटिल बिट ऑफ बर्डन आपके हेड से ऑफ हो जाएगा, राइट? एंड दैट वुड बी सो कूल, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बर्डन ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे हम लोग और भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, एंड डेफिनेटली एट दैट तब जाके आप अपना जो कंपटीशन है उसे डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे. एंड दैट वुड बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय यू बाय रिवाइजिंग द कंसेप्ट, राइट? तो दैट इज़ द कूल थिंग इफ़ यू डू दैट. लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है, तो मेक श्योर यू डू इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. आज ही से स्टार्ट करो, राइट? और आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है तभी भी 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव नॉट बिजी शेड्यूल देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन गिव मोर टाइम टू द रिविजन, ऑलराइट? तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, राइट? एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, जहाँ पर आपको यही नॉलेज दोबारा चाहिए होगी बिकॉज 11th 12th में जाके यू विल बी लाइक स्टडिंग यही टॉपिक आप लोग स्टडी करोगे बट ऑन मच एडवांस लेवल, राइट? तो बेसिक्स तो 9th 10th में ही पढ़ोगे. अगर तुमने अभी बेसिक्स क्लियर कर लिए तो फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, तो वहाँ पर तुम एडवांस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो, राइट? वरना तुम्हें वापस से वही बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे. मतलब क्यों तुम इन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ोगे, राइट? तो एक बार पढ़ो, दिमाग में रखो, एंड दैट वुड बी ऑल, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आगे का पढ़ सके, राइट? तो इससे आपके लिए भी बेनिफिट होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की स्पिरिट भी मेंटेन रहेगी, एंड आपके पास जो नॉलेज होगी आप उसे मच एडवांस लेवल पे सीख पाएंगे. एंड इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट? सो डू इट एंड बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. Alright, now let's get started. We are going to study about the spherical mirrors. So we will be seeing what are these and how they can benefit us. We will be learning them. Alright, so basically what we are going to study the spherical mirrors. What are these? Next we are going to study the types of spherical mirrors, that is the concave and the convex. These two are the types of spherical mirrors. And then we will be talking about some terms which are related to the spherical mirrors and which should be known by every student, because let it be the basics, alright? So you should definitely know. Before you form the image and before you solve the questions, you should definitely remember those terms, right? तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, उन terms को remember कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि आप questions को कर सकते हैं, because you do know that this chapters have a numerical formulas and definitely इस chapter से numericals आते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? You have to do the questions, right? And definitely you should learn the terms related to these spherical mirrors. अब देखो उसके बाद जब हम terms को समझ लेंगे and then we will be learning about the rules, ठीक है? तो spherical mirrors में जब images बनती हैं तो what are the rules those which are followed by the light rays? जैसे कि हमने laws of reflection में देखा, राइट? तो हमने 2 लॉज देखे. वो लॉज हर जो लाइट रे होती है जब वो प्लेन मिरर पे जाती है, वो स्फेरिकल मिरर पे जाती है, तो वो फॉलो करती है उन रूल्स को, राइट? ऐसे ही कुछ और रूल्स होते हैं
जिनकी हेल्प से you can make the images of the objects, alright, in your notebook using the ray diagrams. So I will be telling you the rules, all the rules you needed to make the formation, to make the images of the spherical mirrors, alright, and then we will be ending the lecture today. So let's get started. alright, तो सबसे पहली चीज़ जो एक हम spherical mirror को देखना चाहते हैं, what is that even, क्या होता है spherical mirror. so देखो स्फेरिकल से ऐसा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा एक स्फेयर होता है, पूरा का पूरा गोल होता है, ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअली में उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन मिरर के जैसे प्लेन नहीं होती, इट इज़ लाइक इट इज़ कर्व्ड, ठीक है. तो उसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, कर्व होता है. हैव यू एवर सीन अ स्पून, डेफिनेटली सबने देखी होगी स्पून. तो अब स्पून को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग लाइक अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है. तो उसमें जो एक कर्व सरफेस रहता है, ठीक है, जिससे हम जो है ईट करते हैं, तो बेसिकली दैट कर्व कैन बी टेकन एज एन आइडिया कि भाई वो वैसा ही कुछ शेप, ज़्यादा परफेक्ट नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, बट लिटिल बिट ऑफ फैमिलियर होता है स्फेरिकल मिरर से, ठीक है. तो दैट इज द थिंग कि एक ऐसा मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is known as the spherical mirror. तो स्फेरिकल मिरर जो है उसे हम स्फेरिकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेयर ऑफ अ ग्लास, राइट, एंड वी मेक दैट मिरर फ्रॉम दैम, ठीक है. तो कुछ आइडिया कि भाई किस तरीके से स्फेयर होता है, ठीक है. ये जो स्फेरिकल उसके लिए बातें कर रहे हैं हम लोग, मिरर्स के लिए बातें कर रहे हैं, तो वो जो सरफेस है जो कि अब प्लेन नहीं है, प्लेन मिरर का तो बिल्कुल यू कैन से एक प्लेन होता है, ठीक है, अ स्ट्रेट प्लेन यू कैन से, जो कि कहीं से भी ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स यू आर गेटिंग अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है. नाउ आई कैन गेट यू एन आइडिया ऑफ हाउ, जस्ट लाइक दीज यू कैन से स्पून्स, राइट. तो आप स्पून में देख सकते हो एक पार्ट तो उसका क्या होता है, अगर हम उसे उल्टा करके देखें तो एक पार्ट वो होता है जो बाहर की तरफ से होता है, यानी यू कैन से कि वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, ठीक है. सो that can be taken as a spherical mirror, of course, because it is have a spherical surface, you can say a curved surface, right. और दूसरा पार्ट जो you can say जो inner part होता है जो कि अंदर की तरफ curved होता है, right, तो that can be taken as another one spherical mirror, ठीक है. तो इस तरीके का spherical mirror, you can see also the images, right, the one has a erect image and another one has an inverted image. I'll be telling you how inverted and the erect images are formed, alright. तो ये आपको हेल्प करेंगी कि भाई इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द types of spherical mirrors. So one of the type is, let me tell you that. So one of the type is this, alright. तो यहाँ पे आपको पता है जब कभी भी हम स्फेरिकल मिरर को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर हमने देखा कि एक क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास. सो दिस इज द स्फेयर ऑफ ग्लास, यू कैन से अ बॉल ऑफ अ हॉलो ग्लास, ठीक है, और यू कैन से अ हॉलो बॉल ऑफ ग्लास, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, वी कट इट आउट. हमने क्या किया, एक पार्ट यहाँ से कट कर लिया, ठीक है. जैसे ही हमने एक पार्ट कट कर लिया, वी आर गेटिंग अ पार्ट ऑफ द स्फेयर, हमें एक पूरा स्फेयर का जो है वो पार्ट मिला, कुछ ना कुछ पार्ट मिला, एंड दैट इज कर्व्ड, राइट, इट हैज अ कर्व्ड सरफेस. सो ये जो पार्ट है एक्चुअली इससे हम लोग वी कैन मेक द मिरर्स, ठीक है, द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो केसेस हैं. अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम बाहर वाला साइड यानी कि जो बाहर बल्ज आउट हो रहा है, अगर तुम उस साइड को पेंट कर देते हो, ठीक है, सो रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होगा, अंदर वाला, क्योंकि पीछे की तरफ तो तुमने क्या किया, बल्ज आउट पार्ट पे इफ यू आर पेंटेड, तो क्या हो रहा है, अंदर का वाला जो पार्ट है दैट कैन बी टेकन एज द रिफ्लेक्टिंग वन, ठीक है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे इमेजेस बनेंगी, शाइनिंग पार्ट वहां होगा, राइट. तो ये जिस तरीके का जो मिरर बनता है दैट इज नोन एज द कनकेव मिरर, ठीक है. सो सच टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर. ये कैसा मिरर होता है, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस कनकेव मिरर, touch the mirror and when you get like it has a you can say a depth to the surface as you can see this. तो यहाँ पे you can see the shining part कहाँ होना चाहिए, कैसे पहचानोगे उसके लिए you can see the cave here. यहाँ पे देखो CAVE cave है ना, तो इस cave में क्या होता है, we can enter into the cave, कोई भी एक cave होती है, we can enter into it, right. So like it is work as a path,
ठीक है, यू कैन से इट इज अ पाथ इनटू द केव, तो इट हैज लाइक इस तरीके का इसका शेप होता है दैट वी कैन गो राइट इनसाइड, बट हम असली में नहीं जा पाते, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग हाउ यू कैन रिमेंबर इट. राइट, तो ये जो शेप हुई दैट वुड बी द कनकेव मिरर, मतलब जहां पर इनवर्ड पार्ट जो है उसका दैट इज द रिफ्लेक्टिंग वन, एंड आउटवर्ड द बल्ज आउट पार्ट जो होता है, दिस बल्ज आउट पार्ट इज एक्चुअली पेंटेड. ऑलराइट, तो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इनर पार्ट से होगा, जो कि एक केव की तरह यू कैन से कि भाई एक केव की तरह दिखता है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, जो सेकेंड टाइप होता है ना एक्चुअली दैट इज द अदर वन, यू कैन से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन. यहाँ पर भी हमने सेम यही काम किया है. क्या काम किया है? हमने इस पूरे के पूरे एक स्फेरिकल बॉल को, स्फेरिकल ग्लास बॉल को कट कर दिया है. आफ्टर कटिंग वी आर गेटिंग अ पीस, बट अब की बार हमने क्या किया है? इनर पार्ट को पेंट कर दिया है. ठीक है, यू कैन सी द इनर पार्ट इज पेंटेड हियर. ठीक है, पेंट कर दिया, तो शाइनिंग पार्ट कहाँ मिलेगा? दूसरी तरफ, बल्ज आउट की तरफ. राइट, तो जो एरिया बल्ज आउट हो रहा है, जो कि शाइनी सरफेस है विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, दैट इज नोन एज द कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सो यू कैन सी द कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर. ठीक है, तो यहाँ पर अब किस तरीके से दो मिरर्स हैं, कनकेव, कन्वेक्स, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैम. सो देखो, जिस भी मिरर का शाइनिंग पार्ट इनर होता है, ठीक है, सो इट इज अ फॉर्म लाइक, इट इज अ शेप ऑफ अ केव, यू कैन इमेजिन एज अ केव. ठीक है, सो दैट वुड बी शाइनिंग पार्ट अगर अंदर की तरफ होता है तो दैट कैन बी टेकन एज अ केव एंड दैट कैन बी टर्म्ड एज और लर्नड एज अ कनकेव मिरर. Alright, so like this, so the shining part is like inwards and that can be taken as a cave. और जो बचा हुआ दूसरा है, क्योंकि दो ही तो स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो जो सेकेंड वन इज यू कैन से द आउटर सरफेस इज बल्ज आउट है, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउट हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है. राइट, तो यू कैन टेक दैट एज अ कन्वेक्स मिरर. ठीक है, सो नोट दिस डाउन, दीज टू टाइप्स ऑफ मिरर्स. ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन. So these are the two types of spherical mirrors you can get. Alright, now अभी हमने दो तरीके के spherical mirrors देखे हैं, like concave, convex. ठीक है, these are the two types of spherical mirrors we can get. Now let's talk about concave mirror. What is that concave mirror and how it can be identified? You can say how it works and all. So now see, this is the, you can say the concave mirror. So see, concave mirror is spherical mirror whose outer bulge out surface is silvered. Silvered means the painted one. ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसका जो outer part है, bulge out part है, इस पूरे पार्ट को हमने पेंट कर दिया है. तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो किसकी तरफ होगा? दैट वुड बी इनर साइड. ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो बेसिकली इट वुड बी गो लाइक दिस, लाइट इस पार्ट से, इस इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर हॉलो केव टाइप सरफेस. ठीक है, तो इनर वाले सरफेस में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, आउटर वाले को हमने पेंट कर दिया है, सो दैट साइड बिकम्स ओपेक वन. ठीक है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन होगा. सो यू कैन रिमेंबर इट विद अ केव. राइट, तो इनर पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनर पार्ट में लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, बट आउटर में नहीं होगा. ठीक है, तो दैट इज द, यू कैन से द टाइप ऑफ कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स. नोट दिस डाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कनकेव मिरर.
ऑलराइट, तो इस कनकेव के बाद लेट्स लुक व्हाट इज कन्वेक्स। ऑलराइट, सो दिस इज द कन्वेक्स। ऑलराइट, तो अब की बार हमने क्या किया है, ये जिस भी स्फेयर का पार्ट है, मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फेयर का पार्ट है, ऑलराइट, हमने क्या किया, उसके इनवर्ड एरिया को, यू कैन से सरफेस को, इनर सरफेस को, वी हैव पेंटेड दैट। तो अब की बार जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ वाली साइड से होगा, राइट। तो मतलब लाइट जब यहाँ से आएगी ना तब जाके वो रिफ्लेक्ट होगी, ऑलराइट। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस बट स्टिल, ऑलराइट। तो लेट मी टेल यू हाउ। तो देखो लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, इट विल लाइक कम लाइक दिस और यू कैन से लाइक दिस, तो इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कौन से पार्ट से हो रहा है, बाहर वाले पार्ट से हो रहा है। लाइट रे किस पे फॉल करेंगी, बाहर वाले पार्ट पे होगा, यानी कि जो ऐसा पार्ट है जो बल्ज आउट सरफेस है, राइट। इनर सरफेस को हमने पेंटेड कर दिया है। सो सच टाइप ऑफ शेप इफ यू एवर गेट that type of shape is of the convex mirror, ठीक है। तो देखो convex mirror is a spherical mirror whose inner cave type surface is silvered, उसको पेंट कर दिया है, and reflection takes place at the outer convex surface, ठीक है। तो यहाँ पर जो actually reflection हो रहा है वो कौन से तरफ हो रहा है, that is the bulge outside, right। तो this type of mirror is known as the convex mirror, ठीक है। इसको भी फटाफट से नोट कर लो and then we will be moving forward। ऑलराइट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू दी यू कैन से द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को भी रिमेंबर करेंगे दैट यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, हम इस चीज़ को रिमेंबर करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी लाइक थिंग्स, राइट। तो देखो ऑलराइट, लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड। नाउ सी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पोल की, ठीक है। तो व्हाट इज दैट पोल, हम लोग इसकी बात करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे मेन काम क्या देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं जो कि एक स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ऑलराइट। सो जो टर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे वो सारे के सारे टर्म्स दोनों ही मिरर से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कनकेव के लिए अलग टर्म्स ले रहे हैं, कन्वेक्स के लिए अलग टर्म्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी टर्म को देखेंगे वो दोनों ही मिरर के लिए पॉसिबल है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द पोल, ऑलराइट। सो द पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। सो लेट मी टेल यू इन द डायग्राम। नाउ सी, यू कैन सी हियर दिस इज द, यू कैन से द डॉटेड वन, ठीक है। ये तो जो डॉटेड पार्ट है ना, दिस डॉटेड पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द इमेजिनरी स्फेयर जिसका पार्ट ये मिरर है, ठीक है। देखो जो डॉटेड पार्ट नहीं है दैट इज द मिरर, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटेड पार्ट नहीं है दैट इज व्हाट, द मिरर, द स्फेरिकल मिरर, एंड जो डॉटेड पार्ट आपको शो किया गया है दैट इज द हॉलो स्फेयर, इमेजिनरी हॉलो स्फेयर, क्योंकि अभी हम आपको मिरर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मिरर जिस भी यू कैन से स्फेयर का पार्ट रहा है उस स्फेयर को हमने डॉटेड से बताया हुआ है, ठीक है, डॉटेड लाइन से बताया हुआ है। तो हमने फर्स्ट टर्म देखा है दैट इज द पोल, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो गेट दैट दिस ग्रे लाइन जो है ना, ये ग्रे लाइन इज शोइंग यू व्हाट, द पेंटेड साइड, ऑलराइट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, what is the name of this mirror, this is a concave mirror, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। वहीं पर आप ये देख सकते हो दिस इज दी, यू कैन से पेंटेड वन। तो देखो आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स लाइट विल रे कम लाइक दिस, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे हम जो पोल की बात कर रहे थे, पोल इज द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो स्फेरिकल मिरर पर एग्जिस्ट करता है, पर लाई करता है, ऑलराइट। एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ऑलराइट। तो ये जो मिरर आप देख रहे हो, इस मिरर का जो सेंटर है दैट सेंटर इज द पोल ऑफ द मिरर,
ऑलराइट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मेक आउट द P ऑन कन्वेक्स मिरर ऑल्सो दिस पॉइंट, ठीक है. तो ऐसा पॉइंट जो कि मिरर पे लाई करता है एंड द पॉइंट विच इज एट द सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है. लुक, इसको ध्यान से सुनना है, सेंटर ऑफ द मिरर, इसका मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन द मिरर एंड एट द center. This is known as the pole. It is denoted by capital P. You can watch out for both the mirrors. All right. Now next we let's talk about the next one. ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं. देखो, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ पर है ये सेंटर, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मतलब ये मिरर, यानी कि ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था, ठीक है, जिस स्फेयर में से हमने इसको काट के बाहर निकाला है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो ये वाला जो स्फेयर है, ये जो इमेजिनरी एंड डॉटेड लाइन से आपको दिखाया हुआ है, उसका सेंटर वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. ठीक है, तो मतलब है तो सेंटर वो किसका, स्फेयर का, बट यहाँ पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए है, इस मिरर के लिए है. ठीक है, इसी तरीके से आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ से, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये तो हमें पता चल ही गया है ना. यू कैन सी इट इज नॉट ऑन द मिरर, इट इज नॉट ऑन द मिरर, एक्चुअली दिस इज द पॉइंट ऑफ दैट स्फेयर, राइट. स्फेयर का सेंटर है ये, तो ये तो मिरर के सामने ही होगा, है ना. तो यू कैन सी मिरर के, यू कैन से आउटसाइड ऑफ द मिरर सरफेस, है ना. तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो पोल है वो तो मिरर का पार्ट है ना, मिरर के ऊपर लाई करता है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के ऊपर लाई नहीं करता है. ठीक है, देखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, यू कैन सी, देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो तो वो वाला पार्ट है ना, मतलब लाइट रे इस तरफ से आ रही है ना. तो देखो लाइट रे जहां से आ रही है तो बेसिकली दिस इज लाइक द फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट. लेकिन तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट रे कन्वेक्स के केस में किस तरीके से जाएंगी, ऐसे जाएंगी लाइट रेज, ऑलराइट. लेकिन आप देख सकते हो पेंटेड वाली साइड के पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो यू कैन से कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम कनकेव की बात करें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है, जहां से लाइट रेज आ रही हैं वो उस तरफ है, और हम लोग कन्वेक्स के लिए बोल सकते हैं इट इज बिहाइंड द मिरर. तो मतलब पेंटेड साइड के पीछे है वो, बिहाइंड द मिरर एक्चुअली दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड टर्म यू शुड नो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं थर्ड वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब तो समझ में आ गया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग है. रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है उस पूरे के पूरे स्फेयर का रेडियस एक्चुअली. सो यू कैन से द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर. तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये जो रेडियस होगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो स्फेयर है जिसका पार्ट ये स्फेरिकल मिरर है, उसका जो रेडियस होगा दैट वुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो देखो यहाँ से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, उसी तरीके से आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो मतलब उस स्फेयर का रेडियस जिसका पार्ट ये मिरर है इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर. ठीक है, और हम इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल R से शो करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कैपिटल R. ऑलराइट, सो बेसिकली वी कैन डू दैट. नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Principal axis, a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called principal axis. Also it is normal to the mirror at its pole. Let's understand this. ठीक है, you can see here the principal axis, मतलब वो लाइन जो किसको ज्वाइन कर रही है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करते हुए जाती है जो लाइन, दैट लाइन इज एक्चुअली द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल्सो रिमेंबर दैट कि ये जो पोल है, और यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो पोल है दैट इज ऑन द मिरर, राइट, मिरर के ऊपर है, मिरर के बिल्कुल सेंटर पे है। तो यू कैन मेक आउट कि ये जो लाइन है जो कि सेंटर और कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, एक्चुअली दिस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर इटसेल्फ। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, कन्वेक्स मिरर के केस में भी यही है कि दिस लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द मिरर, बिकॉज वो उसे कैसे काट रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। यू कैन टेक दैट एज अनदर थिंग, जैसे हम सर्कल की बात करते हैं, राइट, जब हम सर्कल की बात करते हैं और हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेंटर से कोई लाइन अगर कहीं पर भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी अगर लाई करती है तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, राइट, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। ठीक है, फिफ्थ वन हम यहाँ से देख सकते हैं, अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। सो व्हाट इज द अपर्चर हियर? देखो स्फेरिकल मिरर कितना है, स्फेरिकल मिरर वो तो सिर्फ इतना सा ही है ना, बस इतना सा स्फेरिकल मिरर है ना दोनों के केसेस में। तो यहाँ पे जो डायमीटर होगा स्फेरिकल मिरर का, यानी कि जो लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन कर रही है, सो दिस लाइन इज नोन एज द अपर्चर। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक अपर्चर बना, देखो कन्वेक्स में भी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वन एंड से सेकेंड एंड को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस, एक बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। तो दिस इज एक्चुअली द अपर्चर। यू कैन सी diameter of the reflecting surface, so you can see this is the reflecting surface and this is the reflecting surface, right। तो इन दोनों का जो diameter होगा, मतलब one end to one end जो हम straight line खींचेंगे जो कि सेंटर से भी जाती है, राइट। तो बेसिकली दैट इज नोन एज द अपर्चर। सो बेसिकली अगर आप अपर्चर की बात करते हो तो मतलब आप उस मिरर के साइज की बात कर रहे हो कि वो मिरर कितना बड़ा है कितना छोटा है वो, ऑलराइट। तो यहाँ पे यू कैन डेफिनेटली राइट हियर, अगर मैं इसे ए बी मैंशन करती हूँ, ठीक है। सो दिस ए बी इज एक्चुअली शोइंग यू द अपर्चर ऑफ द मिरर, द कन्वेक्स मिरर एंड द कनकेव मिरर। रिमेंबर अपर्चर हम आगे से नाप रहे हैं फॉर द कनकेव, बट कन्वेक्स के केस में वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम बिहाइंड, राइट। उसका क्योंकि बल्ज आउट पार्ट बाहर है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बल्जिंग आउट, राइट, दैट्स व्हाई वी डू सो। ठीक है, वी विल कंसिडर द स्फेरिकल मिरर्स whose aperture is much smaller than its radius of curvature। तो देखो हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो भी इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर के बारे में जो भी पढ़ने वाले हैं, तो हम स्पेसिफिकली ऐसे मिरर्स को चूज कर रहे हैं जिनका जो ये अपर्चर है ना, ये बहुत 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 छोटा है। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है, मतलब उनका कर्व्ड पाथ बहुत ही छोटा है। यू कैन से वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल मिरर जिसका जो स्फेयर है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उन्हीं स्फेरिकल मिरर्स को लेंगे जिनका अपर्चर इज एक्चुअली स्मॉलर, राइट, दैन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ यू कैन से द रेडियस और द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेसिकली दिस सी पी डिस्टेंस वुड बी लार्जर दैन दिस ए बी, उनको हम जो है कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके लिए ही हम लोग क्या करेंगे, सारे रे डायग्राम बनाने वाले हैं, सारे इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ऑलराइट। सो नाउ यू कैन नोट देम आउट ऑल द 5 पॉइंट्स हियर। ठीक है, ये 5 जो हैं, उसके बाद हम लोग मोर पढ़ेंगे, मोर टर्म्स को देखेंगे, बट फर्स्ट यू नोट डाउन दीज 5 टर्म्स, ऑलराइट। एवरी सिंगल थिंग कि वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या डेफिनेशन है, ठीक है, डिस्टेंसेस, ये तुम्हें मेजर करके लिखने हैं। ऑलराइट, तो देखो ये तुमने 5 के 5 देखे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोर थिंग्स यू नीड टू नो। ठीक है,
सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फोकस। तो हम प्रिंसिपल फोकस पे बात करते हैं। व्हाट इज दैट? तो देखो, दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन अभी नहीं हो, ठीक है, व्हेन यू आर लर्निंग। सो दिस इज लाइक, लेट मी टेल यू, दिस इज, देखो, दिस इज द कनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि देखो जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, ये तो ब्लैक लाइंस आ रहे हैं ना मिरर की तरफ, दीज आर एक्चुअली द रेज वी हैव स्टडीड अबाउट, ठीक है। तो ये वो लाइट रेज हैं जो कि मिरर पे फॉल हो रही हैं। सो यू कैन से दैट ये सारी की सारी लाइट रेज आ रही हैं, दे आर बिहेविंग एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। सो यू कैन सी कौन सा सरफेस, दिस इंटरनल सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग वन, ठीक है। वहीं पर अगर हम यहाँ बात करें, कन्वेक्स मिरर की बात करें, तो ये जो लाइट रेज फॉल हो रही हैं, ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, जहां से भी लाइट रेज आती हैं, फॉल होती है, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर या तो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही होती हैं, या फिर वो ऐसा लग रहा होता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू अगेन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो यू कैन से द जो रेज है, लाइट रेज है, वो मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो सी हियर, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट रेज मिरर पे फॉल कर रही है, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है, 5 लाइट रेज आ रही हैं। फर्स्ट वाली को देखो, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, और फिर वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद इट इज फॉलिंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। फिर सेकेंड वाली को देखो, सेकेंड वाली जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज फॉलिंग ऑन सेम पॉइंट। थर्ड वन की बात करते हैं, वो भी वापस आके सेम पॉइंट पे मिल रही है। फोर्थ की बात करते हैं, वापस आके फिर से एफ पे मिल रही है। एंड फिफ्थ वन की बात करते हैं, वो भी सब फिफ्थ पे एफ पे मिल रही है। सो ऐसा पॉइंट जहां पर सारी लाइट रेज, द पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि एज यू कैन सी सारी की सारी पैरेलल थी, तो ये जो पैरेलल लाइट रेज होती है, जब ये किसी पॉइंट पर मिल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो पॉइंट जो होता है दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स के लिए कुछ अलग केस होता है। क्या केस होता है, लेट्स सी। देखो, दीज 3 आर द रेज जो कि क्या हो रही हैं, इस पे फॉल कर रहे हैं, मिरर के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो यू कैन सी द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो अब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, मिरर से डेफिनेटली टकराने के बाद रिफ्लेक्शन तो होगा। तो देखो, फर्स्ट वन को देखो, फर्स्ट वन से क्या हो रहा है, लाइट रे फॉल हो रही है एंड इट गोज अवे, ठीक है। और किस तरीके से जा रही है, जैसे किसी पॉइंट से आती हो, ठीक है। बिल्कुल प्लेन मिरर वाला जैसे हमने सीखा था कि हमें क्या करना था, उस पॉइंट से बाहर आता हुआ हमें देखना था, राइट। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो ये वापस जा रही है वो रे, वो ऐसा लगेगा जैसे वो इस एफ से आती है, ठीक है। सेकेंड वाले के केस में बिल्कुल सेम है, यहीं से आती हुई तुम्हें लगेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और थर्ड वाले के केस में भी कैसा हो रहा है, ऐसे ही जा रही है। सो यू कैन सी, यू कैन मेक आउट कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे, we will be getting a point and that point is actually the principal focus of a convex mirror, ठीक है। तो मेन थिंग यहाँ पे क्या हुई, मेन थिंग यहाँ पे ये हुई कि एक्चुअली कन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ऐसा लगता है कि वहां से लाइट रेज आती हैं, बट एक्चुअली में वो क्या होता है, टकरा के भाग जाती है, राइट। तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग द लाइट रेज इस तरीके से, it seems like the light rays are coming from that F point and that point is actually the principal focus of the convex mirror, ठीक है। डेफिनेशन के लिए देखो, a number of light rays parallel to the principal axis falls on a concave mirror and the reflected rays intersect at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. तो ये first of all you need to remember that this point always lie on the principal axis, ठीक है। तो you can see here, this is the principal axis, the line joining the center of curvature and pole. This is the focus, ठीक है, in the midway of that distance, right? तो you can get that कि ये जो principal focus होता है वो एक ऐसा point होता है concave mirror के लिए जहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या होता है, कन्वेक्स के केस में होता है ऐसा पॉइंट जहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट,
ठीक है, देखो अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन द कन्वेक्स मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। तो ऐसा लगता है कि वहां से लाइट रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मिरर, बट एक्चुअली में दोज आर द रिफ्लेक्टेड वंस। ठीक है, देखो तो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस को हम कौन से लेटर से शो करते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। और एक और चीज तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या, देखो कनकेव मिरर के आगे यानी फ्रंट में रखा हुआ है फोकस, राइट। तो कनकेव मिरर के फ्रंट में फोकस होता है, बट कन्वेक्स के केस में बिहाइंड द मिरर फोकस होता है। ठीक है, ये चीज तुम्हें रिमेंबर करनी है। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट हो गया। अब 7th पॉइंट जो आपको टर्म रिमेंबर करना है, दैट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस होता है किसका, इस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, सो यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, एज यू कैन सी हियर this small f is the distance between pole and focus. This small f is the distance between pole and focus. You can see here, right? So this small f is actually the distance between the pole and the focus, principal focus of the mirror. ठीक है, तो these are so easy terms, right? आपको इतना hard नहीं होगा इनको remember करने के लिए. Note them down. ऑलराइट, नाउ अब हम जो है बात करते हैं रूल्स की। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 1। वी आर गोइंग टू गेट द 4 रूल्स हियर। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 1 हियर। Rule number 1 is the ray incident parallel to the principal axis actually passes or appears to pass through the focus. ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, लाइट रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, सो द लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, ये हमेशा फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी फॉर द कनकेव के लिए। ठीक है, सो इट गोज बैक टूवर्ड्स दी फोकस। ठीक है, तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। कोई भी लाइट रे अगर वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम द फोकस इन द केस ऑफ अ कनकेव मिरर। लेकिन कन्वेक्स के लिए दूसरा केस होता है। क्या होता है, देखो पैरेलल आ रही है लेकिन इस तरीके से जाती है जैसे फोकस से जा रही हो। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो यू कैन सी पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है तो इट ऑलवेज गोज इस तरीके से जाती है जैसे कि फोकस से जा रही हो। इट सीम्स लाइक इट इज गोइंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 1 दैट शुड बी रिमेंबर्ड, बिकॉज हर एक पैरेलल जो लाइट रे होती है इट वर्क लाइक दिस, it goes through the focus in the case of concave mirror and appear to go from the focus in the case of convex mirror. ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, a ray incident through the center of the curvature C falls normally and is reflected back along the same path. तो अगर तुम इस तरीके से लाइट रे को फेंकते हो, फॉल करवाते हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, यू कैन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, तो इसका मतलब टकराने के बाद ये अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। जैसे वो प्लेन मिरर का केस था, हम नॉर्मली उसको फॉल करवाते थे, 90 डिग्री पे फॉल करवाते थे, तो वो क्या होती थी, अपना पाथ रीट्रेस कर लेती थी एज इट इज। यहाँ पर तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करवाना पड़ेगा। तो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल हो रही है वो अपना पाथ रीट्रेस कर लेगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। और इसमें तुम्हें क्या करना है, कन्वेक्स मिरर में क्या करना है, तुम इस तरीके से लाइट रे को फॉल करवाओगे जैसे तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फेंक रहे हो उसको। ठीक है, और क्या होगा, इट वुड अपीयर जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही थी। ठीक है, ये होता है कन्वेक्स के केस का। ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। व्हाट इज दैट रूल नंबर 3, ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। देखो
द रे इंसिडेंट थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब अगर तुम क्या करो, कुछ इस तरीके से रे को फेंको कि वो फोकस से जा रही है, ठीक है, फोकस से जा रही है, तो इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपोजिट ऑफ रूल 1, ठीक है। रूल 1 में क्या था, पैरेलल आती थी, फोकस से जाती थी, है ना। अब हमें क्या करना है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है, ठीक है। दैट इज द थिंग फॉर द कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं तो देखो हम इस तरीके से फॉल करवाएंगे जैसे हम फोकस पे फेंक रहे हो, ठीक है, फॉल करवा रहे हैं जैसे फोकस की तरफ जा रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द मिरर। ऑलराइट, दैट इज द रूल नंबर 3rd. Now let's talk about the rule number 4 here. Rule number 4 is actually the law of reflection वाला, ठीक है। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror on the concave or a convex mirror is reflected obliquely making equal angles with the principal axis. तो देखो ये पोल है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी एक एंगल पे पोल पे फोकस करवा रहे हो, मतलब तुम लाइट को पोल पर ही फेंक रहे हो, बट एक्चुअली में व्हाट यू आर डूइंग इज पोल की तरफ फेंक रहे हो, मेकिंग एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये जो एंगल है, दिस लाइट रे इज गोइंग लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम टू सेम एंगल्स बनाती है, जस्ट लाइक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो जो इंसिडेंस एंगल है वही रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल बन जाएगा एंड इट गोज अवे। सिमिलर केस है कन्वेक्स का भी, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे आ रही है मेकिंग एन एंगल एंड इट गोज अवे, right? So these are the 4 rules you need to remember if you want to make sure that you make images correctly by the spherical mirror. So these were the 4 rules. ये rules जो है मैं next lecture में वापस से आपको revise करवा दूंगी, ठीक है। So these are the 4 rules and then उसके बाद हम image formation देखने वाले हैं. So in the next class we are going to see the image formation, कनकेव में कैसे इमेजेस बनती हैं और कितनी इमेजेस बनती हैं, कहाँ कहाँ इमेजेस बनती हैं, एंड देन कन्वेक्स ऑल्सो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.